Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and this is our revision lecture for chapter 5 When People Rebel 1857 and After. So students, exams are approaching and you might be studying very hard to score good marks. So let's check what you have studied. I have always told you that don't try to cram the answers of the questions. ओनली मेक द कॉन्सेप्ट्स क्लियर. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनते हैं ध्यान से, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप इजीली दे पाएंगे. ओके, एंड ऑल्सो रीडिंग इज मस्ट. ऑलवेज रीड द चैप्टर केयरफुली फ्रॉम द बुक. ओके, सो लेट्स रिवाइज टुगेदर. लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस here are on the screen. Yes, your first question is, who was Mangal Pandey? मंगल पांडे कौन थे? You have the 4 options. First option is he was a soldier. B option is a villager. C option is king. And D option is all of these. So children, you all know that Mangal Pandey was a सिपाही in the British Army. बंगाल जो इन्फेंट्री थी उसके सोल्जर थे वो. So which one is correct option? Of course, A option is correct. And your correct answer is he was a soldier. Next question. Who was the Mughal emperor at the time of revolt of 1857? Yes, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय मुगल एम्परर कौन थे? You again have 4 options. First one is Akbar, second one is Bahadur Shah, third one is Shah Jahan, and the fourth one is none of these. Yes, let's recall something from the chapter that जब मेरठ में जो आर्मी है उसने रिवोल्ट किया था, म्यूटिनी हुई थी, तो उसके बाद सोल्जर्स मार्च करते हुए सीधा कहाँ पहुँचे थे? दिल्ली. एंड एट द रेड फोर्ट दे डिक्लेयर्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह देयर लीडर. So here is the name. B option is correct. Bahadur Shah Zafar. Okay. Now third question. Who was, or you can say who were, the leaders of the revolt who actively took part in it? Okay, here are the 4 options. आपको बताना है 1857 के रिवोल्ट के मेन लीडर्स कौन थे. वी ऑल नो दैट देयर वाज नो सिंगल लीडर, देयर वर मैनी लीडर्स, है ना. दे वर फाइटिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. So you also have many options. First one is Nana Saheb, second one is Tatya Tope, third one is Rani Lakshmi Bai, and fourth one is all of these. So as previously told that there were many leaders from different places, so all of these were leaders. Tatya Tope was general of Nana Saheb, and Nana Saheb was fighting from the which place? From Kanpur. And Rani Lakshmi Bai, again she was also a leader of the revolt. She was fighting from the Jhansi. So D option is correct, all of these. So question number 4. Write the name of the places related to the first war of independence. Now what is this first war of independence? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है 1857 का रिवोल्ट. उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं. सो यू हैव 4 ऑप्शंस: दिल्ली, मेरठ, झांसी एंड ऑल ऑफ दीज. सो अगर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही है तो इसका अपने आप ही आपका सही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि प्लेसेस जो थी वो मेन सेंटर्स थी रिवोल्ट की. ऑल्सो यू हैव डन दिस थिंग इन द मैप. सो D option is correct answer, and your answer is all of these. Let's move to the next question now. So here is the next question. What were the effects of the revolt of 1857 on India? इंडिया पर 1857 के रिवोल्ट का क्या इफेक्ट हुआ? You have 4 options. First one is end of Mughal Empire. Second is the beginning of Mughal Empire. Third is end of British Empire. And fourth one is all of these. So which one is correct? If you have studied about the results of the revolt of 1857, तो आपको अच्छे से पता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या किया गया था.
जो मुगल एम्पायर है उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, एंड ऑफ द मुगल एम्पायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the correct statement from the following with reference to the revolt of 1857. आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको इनमें से एक स्टेटमेंट चूज करनी है जो करेक्ट है. फर्स्ट वन इज मेरठ वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी annexed. Second is the sepoys were angry with the British because the photo of Bahadur Shah Zafar was removed from the coins. And third statement says in 1857 Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. So which one is correct? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि मेरठ जो थी वो लास्ट टेरिटरी थी जिसको एनेक्स किया गया. सेकेंड कह रही है कि सिपॉयज इसलिए एंग्री थे क्योंकि बहादुर शाह जफर की जो फोटो थी वो कॉइन्स के ऊपर से हटा दी गई थी. एंड थर्ड कह रही है 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी बिकॉज उसने अपने एक ऑफिसर पे अटैक किया था. ऑफ कोर्स द सी ऑप्शन इज करेक्ट. मंगल पांडे को जो है वो ही वॉज हैंग टू डेथ ना, बिकॉज ही हैड अटैक्ड हिज ऑफिसर. एंड ऊपर की जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ए एंड बी दे आर इनकरेक्ट. ना तो मेरठ लास्ट टेरिटरी थी जिसको एनेक्स किया गया और ना ही सिपॉयज इस चीज़ के लिए एंग्री थे कि बहादुर शाह जफर की कॉइन्स के ऊपर से जो है इमेज हटा दी गई है. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. A few reasons for the failure of the revolt of 1857 are given below. Suggest the one that is not considered as a reason for the failure. सो यहाँ पे आपको कुछ एक रीजंस दिए गए हैं फॉर व्हाट कि 1857 का रिवोल्ट फेल क्यों हो गया था और आपने बताना है इनमें से कौन सा रीज़न सही नहीं है. सो योर फर्स्ट रीज़न इज द हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट टुगेदर इवन दो द ब्रिटिश ट्राई टू कीप देम डिवाइडेड. हिंदू एंड मुस्लिम्स मिलके लड़ रहे थे चाहे कि ब्रिटिश उन्हें डिवाइड करना चाहते थे. सेकेंड इज दे यूज्ड आउटडेटेड वेपन्स, मीन्स दे आर द रेवोल्यूशनरीज. जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके वेपन्स आउटडेटेड थे, पुराने थे. एंड थर्ड इज द लीडर्स वर नीदर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनाइटेड नॉर प्रॉपरली ट्रेन्ड. जो इंडियन लीडर्स थे ना तो ऑर्गेनाइज्ड वे में फाइट कर रहे थे ना ही उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग थी. एंड नेक्स्ट इज द एजुकेटेड क्लास ऑफ द इंडियंस वर लॉयल टू ब्रिटिश ड्यू टू देयर सेल्फिश इंटेंशंस. कि इंडिया के जो एजुकेटेड पीपल थे दे वर इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश के साइड लड़ रहे थे. इज इट ट्रू? तो विच वन आर द रीजन्स ट्रू? Here we all know, we have studied about the failure of the revolt. We know that the Indians have the outdated weapons, leader were not organized, educated class was loyal to the Britishers, and this first option says that the Hindus and Muslims fought together. ये ऑप्शन कह तो सही रही है स्टेटमेंट कि हिंदू मुस्लिम उस समय मिल के लड़ रहे थे, बट ये फेलर का कारण तो नहीं हो सकता ना रिवोल्ट के. सो दिस ऑप्शन इज आर आंसर. ओके, हमारा आंसर यही ऑप्शन बनेगी. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. क्वेश्चन में पूछा गया है दैट वन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर द फेलर. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज आर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. So eighth question is, what was the new amendment in the law in 1856 passed by the East India Company? आपको याद है जब हमने एक्सप्लेनेशन दी थी आपको चैप्टर की, हमने बताया था उसमें कि 1856 में ब्रिटिश एक नया कानून लेके आए थे. अब वो क्या था? You have 4 options. Okay. First is every new person who took up employment in the company's army had to pay tax. कि कोई भी नया पर्सन अगर कंपनी की आर्मी में अपॉइंट होता है तो उसको टैक्स पे करना होगा. सेकेंड ऑप्शन इज एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी विल बी पेड ओनली अ लो सैलरी. कि अगर कंपनी की आर्मी में अपॉइंट होते हो तो आपको कम पैसे मिलेंगे, कम सैलरी मिलेगी. Third option says every new person who took up the employment in the company's army
had to agree to serve overseas if required. कि अगर कोई नया पर्सन एम्प्लॉयमेंट लेता है, किसी को काम मिलेगा ब्रिटिश आर्मी में, तो उसको इस बात के लिए एग्रीमेंट साइन करना होगा कि अगर उसको कभी समुंदर पार भेजा जाता है, ओवरसीज भेजा जाता है, तो उसे जाना पड़ेगा. And fourth option is every new person who took up employment in the company's army had to collect the revenue set by the British. कि कोई भी नया पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट लेता है आर्मी में, उसको ब्रिटिश ने जो रिवेन्यू सेटअप किया है उसको कलेक्ट करना होगा. सो स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो डेट ब्रिटिश एक नया कानून लेके आए थे कि इंडियंस जो भी आर्मी में रिक्रूट किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे, उनको एग्री होना पड़ेगा टू सर्व ओवरसीज. कि अगर उन्हें कभी समुंदर पार लड़ने के लिए भेजा जाएगा तो उन्हें जाना पड़ेगा. सो द थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर. एज यू ऑल नो डेट इंडियंस की उस समय रिलीजियस एक मिथ था कि अगर समुंदर पार करते हैं तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है. वो समुंदर के रास्ते से कहीं जाना नहीं चाहते थे, और ब्रिटिश एक ये कानून ले आए थे कि समुंदर पार करके जाना ही पड़ेगा. तो इंडियंस के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो बहुत हर्ट हुए थे सिपॉयज के. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन 9. A few important changes in the Indian Army are given below after the revolt of 1857. Children, as you all know that 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इंडियन आर्मी में भी. अब आपने बताना है इनमें से कौन सा चेंज ट्रू नहीं है. ओके, सो यू हैव द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन. कि इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया और उसको और मजबूत बनाया गया. सेकेंड इज वेरी फ्यू सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. कि अवध से, बिहार से, सेंट्रल और साउथ इंडिया से बहुत कम सोल्जर्स अब भर्ती किए जाने लगे. थर्ड ऑप्शन इज मोर नंबर ऑफ सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम गुरखा, सिख एंड पठान्स. एंड फोर्थ ऑप्शन इज that the number of Indian soldiers were increased and European soldiers were reduced. कि Indian soldiers का number increase किया गया, Europeans कम कर दिए गए. So which one is not true? We all know army was reorganized and अवध, बिहार, सेंट्रल, साउथ इंडिया से बहुत कम सोल्जर्स अब आर्मी में रिक्रूट किए जाते थे, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ से सबसे ज़्यादा रिवोल्ट में पार्ट लिया गया था. एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज गुरखा, सिख और पठान जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादा रिक्रूट किए जा रहे थे, ज़्यादा भर्ती हो रहे थे अब. एंड फोर्थ ऑप्शन कहती है कि नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इंक्रीज्ड. ये बिल्कुल रॉन्ग है. ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियन सोल्जर्स जो थे वो रिड्यूस कर दिए गए थे. अब ब्रिटिश ने क्या करना शुरू कर दिया कि आर्मी में यूरोपियंस ज़्यादा रखे जाते थे हाई रैंक पे और इंडियंस को कम कर दिया गया. सो विच वन इज नॉट ट्रू? डी ऑप्शन. हमारा आंसर डी ऑप्शन बनेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप disobey their officer in the army, it is called. जब आर्मी में ही रिवोल्ट कर दे, आर्मी ही अपने ऑफिशियल्स को जो है डिसोबे करने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? यू हैव थ्री ऑप्शंस. ए म्यूटिनी, बी रिवेंज एंड सी टायरनी. सो चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड म्यूटिनी. एक्चुअल में जब 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था तो उस समय वो एक म्यूटिनी ही था. वो एक सेना का किया हुआ विद्रोह ही तो था शुरू में, क्योंकि आर्मी ने ही तो डिसोबे किया सबसे पहले, बाद में वो पूरे कंट्री में स्प्रेड होता चला गया. ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज बेगम हजरत महल? बेगम हजरत महल कौन थी? यू हैव फोर ऑप्शंस. ए मदर ऑफ वाजिद अली शाह, बी बेगम ऑफ मद्रास, C wife of Wazid Ali Shah, and D none of these. So children, who was Begum Hazrat Mahal? You also have done this thing in the map.
आपको पता है बेगम हजरत महल कौन थी? लखनऊ से उन्होंने रिवोल्ट की कमांड संभाली थी। एंड कहाँ से बिलोंग करती थी वो? एक्चुअल में शी बिलोंग टू द अवध स्टेट। वहाँ पे वाजिद अली शाह जो थे उनको डिपोज किया था ब्रिटिश ने, उनसे उनकी टेरिटरीज छीन ली थी, उनके ऊपर मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा के। और बेगम हजरत महल उनकी वाइफ थी। ओके, सो आर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार? अब ये सिपॉय टू सूबेदार क्या है? ये एक बुक का नेम है चिल्ड्रन। तो ये बुक किसने लिखी थी आपको ये बताना है। यू हैव 4 ऑप्शंस, वाजिद अली शाह, बी इज द तांत्या तोपे, सी इज सीताराम पांडे एंड डी इज नन ऑफ दीज। नाउ चिल्ड्रन, ये जो बुक थी सिपॉय टू सूबेदार, ये बुक लिखी थी सीताराम पांडे ने। और इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ जो है वो मेंशन है। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? बिकॉज यू डोंट रीड द बुक। आप बुक नहीं पढ़ते। अगर आप बुक रीड करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियर रहेंगे। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सीताराम पांडे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13. Now listen carefully. All the MCQs that you are doing are of 1 mark each. And this question number 13, you have to tell true or false. Means the statement is true or false. This question is 5 marks of 5 marks. Okay. ये अकेला क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है बिकॉज देयर आर 5 पार्ट्स. सो टोटल ये जो आपका रिविजन लेक्चर है यू कैन मार्क योर सेल्फ विद द 20 मार्क्स. आप 20 मार्क्स का इसे मान के चलें और इसमें से अपने आप को मार्क्स देंगे आप. सो फर्स्ट आपका 13 क्वेश्चन का पार्ट है. यू हैव टू टेल इट ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट वन इज, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन. कंट्री साइड मतलब विलेजेस में जो पीजेंट्स थे और जो ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे, वो हाई टैक्स और ब्रिटिश का जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो मेथड था उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट थे. क्या ये सही है? यस, दिस वन इज ट्रू. नाउ सेकेंड वन, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. अब नाना साहेब तो पता है ना आपको कौन थे? कानपुर से जिन्होंने रिवोल्ट किया था. लेट पेशवा जो बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, ब्रिटिश ने मना कर दिया था ना उनको उनका लीगल हायर मानने से. देन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठी की और अपने सिटी से ब्रिटिशर्स जो थे उनको भगा दिया. इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, this one is also true. Now third one. Sitaram Pandey served the English for 8 years and retired in 1860. अब सीताराम पांडे जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के यहाँ 8 years तक एम्प्लॉय रहे. वो उन्होंने वर्क किया था, 1860 में रिटायर हुए थे. नो, दिस वन इज रॉन्ग. ओके. एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज अहमदुल्ला शाह केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश. अब अहमदुल्ला शाह कौन थे? ही वॉज अ मौलवी फ्रॉम द फैज़ाबाद. फैज़ाबाद से एक मौलवी थे जो लखनऊ आए थे और बेगम हजरत महल के साथ मिल के उन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सो बेगम हजरत महल कहाँ से रिवोल्ट कर रही थी? लखनऊ से. तो आप बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? So children, this one is also true. Fifth one is Zeenat Mahal was the wife of Nana Sahib. नाना साहेब की वाइफ का नाम क्या था? जीनत महल तो नहीं था. ओके, सो दिस वन इज फॉल्स. नेक्स्ट वन, बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862. यस चिल्ड्रन, 1857 के रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफ़र को और उनकी वाइफ को जो है कैद कर लिया गया था एंड दे वर सेंट टू द रंगून इन अ जेल. रंगून कहाँ पे है?
मालूम है रंगून कहाँ पे है? उस समय बर्मा नाम का कंट्री था, जिसको अब आप म्यांमार बोलते हो, तो उसका कैपिटल। ओके, तो बहादुर शाह जफर को वहाँ एक जेल में भेज दिया गया था इन रंगून, एंड वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी इन नवंबर 1862। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस वन इज ट्रू। इज इट क्लियर? So you can see the answers of each statement now here. First one was true, second is true, third one is false, fourth is true, fifth false, and sixth one is true. Okay, so sixth one is also true, and in this way you can give marks to yourself. Let's move to the next question now. Here is a picture based question now. Recognize this able personality from Awadh who led the revolt of Lucknow from with Maulvi Ahmadullah. Already done this question, बट यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर दी गई है. आपको बताना है ये कौन है जिन्होंने लखनऊ से रिवोल्ट किया था. बिलोंग ये अवध स्टेट को करती थी एंड मौलवी अहमदुल्ला के साथ मिल के रिवोल्ट किया था. You have four options: झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल and रानी चेन्नम्मा. So which one is correct? Yes, C option is correct. She is बेगम हजरत महल. ये बेगम हजरत महल हैं. इन्होंने और इनका बेटा था बिरजस कादरी, जिन्होंने मिल के रिवोल्ट में पार्ट लिया था फ्रॉम द लखनऊ. Okay, now last question is question 15. Observe the picture given below taken from NCERT book and answer the question that follow. ये एक पिक्चर है आपकी बुक में बनी हुई है चैप्टर 5 में ही. Now you have to tell what do you see in this picture. इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, बताइए क्या देख रहे हो. एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स आपको नजर आएंगे और वो क्या कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द रेबल्स. अब वो जो हैं दे आर द ब्रिटिश फोर्सेस आर कैप्चरिंग द रेबल्स. जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो रेबल्स जो हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं. ओके, एंड हेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द आर्टिस्ट वांट टू शो. अब जिसने भी ये पिक्चर बनाई है उसने क्या शो करने की कोशिश की है इसमें. नाउ यू कैन ईजिली टेल दैट आर्टिस्ट ने ये शो करने की कोशिश की है लाइक कि ब्रिटिश फोर्सेस जो थी दे वर माइटी एट दैट टाइम. दे वर वेरी पावरफुल. ऑफ कोर्स दे वर पावरफुल. दे वर अप टू डेट with the modern weapons, modern techniques, and their leaders were also very clever than the Indian leaders. Strategy उनकी बहुत अच्छी थी. So artists want to show or want to say that the might of the British soldiers who valiantly advanced on the rebel forces. जो rebel forces थे उनसे कितने advanced थे वो, ये सब artist ने दिखाने की कोशिश की है. So this was all in this revision lecture. I hope that you have scored very well. And also stay connected for the further lectures. That's all for today.